everyone. CA, ये दो लेटर्स अपने आप में पूरी एक दुनिया है, एक सपना है. It's a dream. Some people realize it, some bury it. I have often heard students saying, CA बहुत tough है, CA बहुत hard है. So my dear, if it was easy, everyone would have done it. It is hard. That's what makes it great, right? और अगर CA tough है, CA hard है, तो कमजोर तो हम भी नहीं, right? This video is for those students who have this kind of spirit. अगर हम अपने CA स्टूडेंट्स को, CA स्टूडेंट्स के जो एसोसिएशन है उसको कैटेगराइज करें, तो इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. 4 तरीके के स्टूडेंट्स हो सकते हैं. पहले वो who are extremely talented people. Extremely talented students, very hardworking, very intellectual, who work day and night, who have that, you can say, God's gift with them of high intellect, of high brain power, of retention, everything. I mean, they are simply perfect. And by God's grace, by God's luck, उनको क्या होता है? They go through the CA examination quite easily. They generally emerge out as the rank holders or the students who pass their CA examination at first or maximum second attempt, right? थोड़े बहुत ups downs हो सकते हैं, but they are extremely talented people and they truly deserve some respect. और सोसाइटी से हमारे उनको वो respect earn होती भी है. The second type of people are ignorant students. Following the crowd. अरे मेरे 4 फ्रेंड्स ने ना CA में एनरोल करा लिया है, so what I should do now is कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करना ही है ना, माँ बाप की इतनी उम्मीदें हैं, कुछ ना कुछ तो पूरी करनी है. so what do I do? चलो CA का फॉर्म भर देते हैं. अच्छा सब उस कोचिंग में जा रहे हैं, what do I do? चलो हम भी चलते हैं. इतनी पढ़ाई तो मुझसे होगी नहीं, what do I do? चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेल फोन एक्सेस कर लेते हैं, इसको मैसेज कर लेते हैं, उसको मैसेज कर लेते हैं. कल रात में बहुत देर तक PUBG खेल रहे थे, क्या करते हैं, थोड़ी सी एक पावर नैप ले लेते हैं. दे आर नॉट एट ऑल सीरियस. बस उन्होंने एनरोल करा लिया है इस पर्टिकुलर कोर्स में. नाउ इफ दे आर एक्सट्रीमली लकी then they clear it. Otherwise, usually such type of students don't clear their examination because it requires real meticulous preparation, real hard work. और वो ये नहीं दे पाते हैं. If they are extremely lucky, then they can, right? तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं who are extra smart students. Extra smart students. I'm not saying that they are dull. I'm not saying that they are very brainy. हो सकता है वो dull हो सकता है वो brainy हो. I really have no idea. But they are definitely smart. How they are smart? या आप बोल सकते हो ओवर स्मार्ट या एक्स्ट्रा स्मार्ट, who somehow don't understand the importance of certain things. जैसे वो अपने ट्रेनिंग के डेस्क पे आते आते रह जाते हैं और उनकी जो आर्टिकलशिप का टेन्योर होता है ना, वो सूना ही रह जाता है. That means they somehow don't understand the importance of practical training in CA curriculum. जो 3 साल होते हैं वो डमी सीट पे गुजार देते हैं और आप बोलोगे all they have is that theoretical knowledge that they have gained while they study and study and study. इतनी पढ़ाई करते हैं कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ये ड्रॉबैक भी है, because if at all it is happening and if at all there are CAs who are granting this या who are letting this happen, तो we should be more aware, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम उन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं. ठीक है, पर ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं who either don't go for practical training or they don't take their practical training seriously or they don't get that exposure. जो भी है, ठीक है, all they have is theoretical knowledge.
चौथे टाइप के स्टूडेंट्स, द फोर्थ टाइप एंड द लास्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर द लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स, और यू कैन से एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट्स। क्या होता है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ? भाई वो ऑडिट का ना एक सेक्शन समझ नहीं आ रहा है, समझा देगा। ऑडिट में ऑल्सो यू हैव ना, अच्छा लॉ का एक सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, समझा देगा। हाँ हाँ बताओ बताओ कौन सा समझाना है, अच्छे से 1 घंटे तक मेहनत की, ठीक है, वही सेक्शन एग्जामिनेशन में आया या वही पूरा चैप्टर आया, और क्या हुआ आपके साथ? धोखा। जिस फ्रेंड को आपने इतनी शिद्दत से एक्सप्लेन किया वो एक्चुअली पास हो गया और आप क्या हो गए? फेल। सो ये धोखे जनरली इन्हीं कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ होते भी हैं, ठीक है, क्योंकि समहाउ आई कैन से कि कुछ ऐसे होते हैं हु लैक इंटेलेक्ट, कुछ ऐसे होते हैं हु लैक दैट लक, जिनके पास लक नहीं होता है या जिनके पास फेवरिंग सर्कमस्टांसेस नहीं होते हैं, ठीक है, या आपके पास कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रॉप अप, राइट। इसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करते जाते हैं हार्ड वर्क एंड दे क्लियर देयर एग्जामिनेशन, राइट, एंड फ्यू आर अनएबल टू क्लियर देयर एग्जामिनेशन। आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, बट एट द फाइनल लेवल समहाउ चीजें नहीं आपके फेवर में टर्न हो रही हैं। आपने उतनी ही पढ़ाई की है जितनी आपके फ्रेंड ने की है, उतनी ही ट्रेनिंग की है जितनी आपके फ्रेंड ने की है, पर आपका फ्रेंड क्लियर करके आप नहीं कर पाए। आपने उसको पढ़ाया, यू आर सरप्राइज्ड, योर फ्रेंड्स आर सरप्राइज्ड, योर फैमिली मेंबर्स आर सरप्राइज्ड कि कैसे, आखिर कैसे। इट हैपेंस मेनी अ टाइम्स कि जो इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, वी सी दोस ब्राइट स्टूडेंट्स की अरे इवन वी टीचर्स गेट सरप्राइज समटाइम्स कि कैसे आपका कैसे नहीं हुआ, ठीक है। सो दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि आप नॉलेज में कहीं पे भी जरा से भी कम है। आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो सीए नहीं बने और उन्हें कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल, इग्नोरेंट, बन गए बहुत अच्छी बात है, नहीं बने इट हार्डली मैटर्स टू देम, करना था कुछ, ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं तो कुछ और सही, दैट इज हाउ देयर थिंकिंग इज। जाने दो। सच फोर्थ कैटेगरी पीपल जो कि सीए में घुस तो गए, मतलब दे हैव टेकन दैट एंट्री बट it is not their forte. As they say, if you judge a fish by its ability to climb a tree, तो वो हमेशा फेल करेगी, right? So everyone has their own eras, own spears, own success path stories, right? तो अगर आपकी वो सक्सेस किसी और लाइन में है, then choose that line. You have n number of options even after you drop out CA, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे एवेन्यूज आपके पास ओपन होते हैं, और इवन इफ यू आर एन इंटरमीडिएट पास, यू हैव गुड प्रैक्टिकल नॉलेज, यू कैन सेटल फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, आप सेटल डाउन हो सकते हो। बट व्हाट अबाउट दोज एज एम्बिशियस पर्सन्स या एम्बिशियस स्टूडेंट्स जिनके हाई एस्पिरेशंस थे, जिनके पास अच्छा खासी नॉलेज है, हु आर प्योरली डेडिकेटेड, बहुत ऑनेस्टली जिन्होंने अपनी पढ़ाई की है, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग की है, एंड प्रोबेबली आई वुड से कि शायद उन लोगों से ज्यादा हार्ड वर्क पुट इन किया है, उन लोगों से ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, जो कि बन गए with no absolutely I am not undermining the value of CA degree at all. CA degree क्या है? Hats off. It truly deserves respect and it must be given respect. But for those जो कि semi qualified रह गए, उनका क्या? They have to leave CA because of certain circumstances. ठीक है, उनको छोड़ना पड़ा. If I go for a comparison, that is qualified versus semi-qualified. अगर मैं बात करूं
नॉलेज की, अकाउंट्स हो, टैक्स हो, कॉस्टिंग हो, ऑडिट हो, क्या नॉलेज इनके पास नहीं है? They have all the knowledge. If you talk about practical knowledge और practical training, इनके पास भी है, इनके पास भी है. What is the difference? Absolutely no difference, right? If you talk about handling pressures, जितना ये groom हुए हैं उतना ही ये भी हुए हैं. If you talk about any other quality that we CAs have, sincerity, dedication, anything, दोनों के पास है. The only difference here is degree. डिग्री जो सेमी क्वालिफाइड के हाथ में आते आते रह गई. बट क्या आपको लगता है कि इस डिग्री की वजह से they should not get that respect, they should not they don't deserve that respect? Why not? किसी कारण से आप सीए नहीं बन पाए, you are extremely talented, you are extremely hardworking, you deserve all the respect. Knowledge is always better than degree. Knowledge with degree is unbeatable. जो first category of students हमने discuss किया is unbeatable, unmatchable. Definitely you cannot match, you cannot go up to that level. ठीक है? Because they obviously have that knowledge, they have that everything that is required, right? पर knowledge can never come below degree. Knowledge हमेशा आपकी डिग्री से ऊपर ही रहेगी. ठीक है? Degree is something you hang on a wall, right? But education is something that you carry for a lifetime. Now supposedly, let's take an example कि कोई ऐसा qualified CA who say is a dummy, या फिर कोई ऐसा qualified CA जो 7-8 attempts में CA बना है, has a degree, but quite possible has lesser knowledge than you. आपने इतना हार्ड वर्क किया, इतने एफर्ट्स डाले, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है. एक बात मैं आपको बता दूं, one thing, even in your interviews, of course, when you get a call for the interview, maybe that degree matters. Maybe नहीं, certainly matter करती है. Attempts, number of attempts matter. But once you are with the interviewer, one-on-one, technical round चल रहा है, all that matters is your knowledge. टेक्निकल वाला आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बेटा आपने कितने अटेम्प्ट में सीए किया है. ओनली एन HR आस्क यू दैट. टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा. ऑल यू विल बी आस्क्ड, ये आता है, हाउ डज दिस हैपन, हाउ डज दैट हैपन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, राइट? सो सपोजिडली जो एक क्वालिफाइड सीए था जिसके पास की कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उसको जॉब मिलती है और आपको भी मिलती है. यू आर सेमी क्वालिफाइड. समहाउ ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस यू कुड नॉट गेट दैट डिग्री. अदर देन दैट सब है आपके पास. तो जो क्वालिफाइड पर्सन है उसकी सपोजिडली, और लेट मी फर्स्ट क्लियर द बोर्ड, डिग्री के नाम पे अगर हम बोलें कि जॉब लग भी जाए, you know, with a certain high percentage or high remuneration than you. So qualified person की जॉब लगी at 6 lakhs and since you are semi qualified आपको जॉब लगी 4 lakhs per annum. I'm just talking about a very average salary. Okay. आपका work is tremendous, you get a rise of 20%. उसका वर्क was not that satisfying क्योंकि अभी तो वो आया है. he is trying to gain that practical knowledge. समय लगेगा ना, he has the theoretical knowledge but उसको practical approach की तरह put in करने में it will take time, right? So उसको growth मिली 5% की. What does it come out to be? 630, right? And 480. Again, up to 3 years it happens.
3 साल तक उसको 5% ग्रोथ, आपको 20% ग्रोथ. क्वालिफाइड विल रीच अप टू, कैन एनीवन कैलकुलेट इट फॉर मी? क्वालिफाइड कहां तक पहुंच जाएगा? Somewhere around 6,91,000, right? And semi-qualified, okay, fine, no problem, 6,91,000, and qualified will reach about to 6,94,000. कहाँ आप कम हो? कहाँ आप कम हो? आपके काम से आपकी पहचान होगी, ठीक है? Don't ever let anyone pull you down. Don't ever let that happen. Whenever we are making a comparison with semi-qualified and qualified, all they have, again I'm telling you, knowledge with degree is unbeatable, but degree without knowledge is nothing. Okay, and if you have knowledge, respect your knowledge. Don't let anyone disrespect it. आपके पास है वो knowledge, तो you will achieve whatever you want to. Again I'm telling you, if it is your passion, if it is your zeal, keep on trying. Try till you succeed. But if at all you take the decision, if at all you have to take that unfortunate decision of dropping out, then keep this passion of work, keep this zeal, keep this dedication, keep this hard work within yourself. आपको उसको कभी भी छोड़ना नहीं है, because that is what makes you different. सीए बने नहीं, सीए की तपस्या पूरी की है, राइट? बस वो एक डिग्री नहीं मिल पाई, राइट? और आप कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है, वक्त है साहिब, बदलता जरूर है. सो ऑब्वियसली वन डे आपका दिन तो आएगा ही आएगा. सो ऑल यू हैव टू डू इज वर्क विद अटमोस्ट ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन. और फिर बाबा रणछोड़दास ने तो कहा ही है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के खुद ही पीछे आएगी. सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन अ नोट की क्वालिफाइड CAs, tremendous, fabulous, but who are semi-qualified, they deserve no less respect. They have gone through all the traumas, all the hard work. आप सोच नहीं सकते इतनी रातें उन्होंने जाग कर गुजारी होंगी, ठीक है? सो दे ट्रूली डिजर्व दैट रिस्पेक्ट. और वो रिस्पेक्ट, वो पहचान, वो सब चीज आप उनके काम से देख पाएंगे. तो whenever you come across any CA finalist who could not clear his CA final exams, just salute that person. Hats off to you, man. CA final, a great deal, truly a great deal. वो बने या ना बने, वो डिजर्व करते हैं पूरी रिस्पेक्ट. एंड इफ यू हैव दैट नॉलेज, अगर आपने पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना CA करिकुलम किया है ना, then nobody can take this away from you. तो आपको क्या लगता है कि this it's all numbers. Money will just be a number for you. This is my assurance to you. अगर आपने ऑनेस्टी के साथ CA करिकुलम किया है, this is the best part that I like about our fraternity. Because जो प्रैक्टिकल नॉलेज वो इम्पार्ट करते हैं ना, it can take you places. If you get the degree, nothing better than that. But even if you don't, then don't be disheartened. लाइफ में बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड माई गुड विशेस आर विद यू. बाय.